All right. So it's exactly 4:05 p.m. and we'll start with the session today. And I again welcome you all in the second session of this series, how to manage 5 pillars of any business. Okay. So first of all, I'll just introduce myself. I have given my introduction yesterday also, but those who are new today, I'll just give quick introduction of myself. I am Suhas Badguzar. uh, I'm having a software company as we are into the startup technology startup. I have total 10 plus years of experience. I was working with MNC company for almost 5 years in Mumbai. Then I started as a freelancer. I worked as a freelancer for 1.5 years, and from last four and a half years, I am running my company called Webis Technologies. Okay, so we are into the application development, mobile application development, and we have our own products also. So I'll give details about my product also soon. Okay, so moving ahead, uh, this is our complete series schedule. So yesterday we learned or we discussed about the working on your business in this crisis. Okay, so we learned something about what to do during this lockdown period and what to do after the lockdown period. Okay, so the word is on. What is working on your business? So currently we are not doing our business effectively as we were doing before the lockdown period. So यहाँ पे क्या है कि हम बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हैं अभी, ना कि बिजनेस के अंदर. जो बिजनेस के अंदर काम करते हैं वो डेली रूटीन वाला काम होता है. रॉ मटेरियल नहीं है आया, या फिर मेरा डिलीवरी नहीं हुआ है, या फिर मेरा प्रोडक्शन में कुछ इश्यू है, मुझे कुछ नया प्रोडक्ट इन्वेंट करना है. सो ये सब चीजें आती है बिजनेस के अंदर जब भी हम काम करते हैं. जो हमने कल जो भी चीजें देखी, दैट वाज वर्किंग ऑन योर बिजनेस. तो नई स्ट्रेटेजीज बनानी है, नए कुछ पॉइंट्स है जो हम लोगों ने डिस्कस किया, which we will cover again. Okay, so in today's session we will discuss about the 5 pillars of business, how you can manage those all 5 pillars. And tomorrow we will see the online free tools which you can adopt for your business absolutely free. And the number of tools which we can give, or which we will discuss tomorrow, that is 36. Exactly count is 36 tools we will provide you. So tomorrow session is also again very much important. Okay, so okay, so we'll start with yesterday's session. So I'll just take 5 minutes to cover up yesterday's points. So the impact of lockdown on businesses. Around 97 to 98 percentage of entire world's business are on standby mode. So वो छोटा चाय का बिजनेस हो या फिर 5 स्टार होटल हो, सभी को इसका इम्पैक्ट है अलग अलग मोड पे, राइट. सो इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हो सकती है क्या? सो वी यस्टरडे सॉ द देयर हैज टू बी सम स्ट्रैटेजी कि उसमें क्या हो सकता है. तो first strategy was defensive strategy. The second one was aggressive strategy. Defensive ka success ratio might be comes into the around 21%. Aggressive strategy around 28%, and near about 86% is for progressive strategy. So progressive strategy is combination of first strategy, defensive and aggressive strategy. Okay, so उसमें क्या कर सकते हैं हम डिफेंसिव मोड पे? We can optimize our cost. तो हमने कल देखा what are those 20 cost elements. तो ये 20 cost elements थे जिसमें एडवर्टाइजमेंट है, वेबसाइट से, या फिर आपका मार्केटिंग है, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, एम्प्लॉय कॉस्ट, ओनर सैलरी, इक्विपमेंट, ईएमआई, फर्नीचर ईएमआई, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट एंड मोबाइल बिल्स. उसके अलावा इंश्योरेंस, रेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, टी एंड रिफ्रेशमेंट, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, लीगल एंड लाइसेंसिंग कॉस्ट, taxes, water bills, stationery and consumables, contingency fund. Okay, so ये अगर हम consider करेंगे, these are 20 cost elements. हर एक business में
ये होते हैं। इसके अलावा अगर कुछ रहेगा तो इट विल डिफर बिजनेस टू बिजनेस। तो इसके अलावा क्या होता है कि डिफेंसिव मोड पे हमको 30 एक्टिविटीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये 30 एक्टिविटीज को कैसे काम करना पड़ेगा, तो आपको कुछ सिस्टम्स डालनी पड़ेंगी, कुछ मेथड्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा, ऑटोमेशन, सीक्वेंस, चेकलिस्ट, ये सारी अगर चीजें आप आपके बिजनेस के अंदर करते हो तो आपका ऑपरेशनल इफिशिएंसी बढ़ेगा, आपका प्रोडक्शन जो है वो उसका आपका बढ़ेगा। एग्जांपल ऐसा है कि अगर एक काम आपका 30 मिनट्स में होता है तो वो आपको रिड्यूस करेगा ये सारे सिस्टम्स मेथड्स इंप्लीमेंट करने से 15 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट के ऊपर ये आ सकता है। सो यू हैव टू वर्क ऑन दिस 30 एक्टिविटीज। सो ये 30 एक्टिविटीज क्या है, तो 30 एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरीज जो हमने कल डिस्कस की कि मार्केटिंग है, फाइनेंस, अकाउंटिंग, एचआर एंड ह्यूमन रिसोर्स, एडमिन, लीगल, सप्लाई एंड परचेस, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो उसमें से जो 16 एक्टिविटीज है जो हमने लास्ट ओईएम इज ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स मीट, जो हम एवरी वीक कंडक्ट कर रहे हैं और जिसमें ये इंटरैक्टिव सेशन रहेंगे। आप आपके बिजनेस के बारे में बता सकते हो, आप आपके बिजनेस में आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसके बारे में आप बता सकते हो। तो एंड वी विल डिस्कस डायरेक्टली इन दिस सेशन। तो ये हमारा अभी ओईएम 3.0 नेक्स्ट कमिंग ट्यूसडे थर्सडे हो रहा है 7 मई को। ये सेशन रहता है इन द मॉर्निंग 11 AM को। तो इसमें हम बाकी जो है सप्लाई एंड परचेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड मेकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो इनके एक्टिविटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आई विल insist all of you to join that session also. So it is very interactive and we got very good leads and connections, so एक दूसरे को वो हेल्प कर सकते हैं। ओके, सो इसके बाद में हमने चेक किया कि एग्रेसिव स्ट्रेटेजी में हम क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें दो चीजें हैं, वन इज इंटरनल opportunities and one is external opportunities. So what is internal opportunities? So keeping your product same and finding new customers। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था शैम्पू का कि जो पहले 1-1.5 लीटर में आता था, तो थोड़ा सा उन्होंने पैकेजिंग में चेंज किया, सैशे में आ गया, जो 300-400 रुपए का प्रोडक्ट था वो 1-1.5 रुपए में आ गया। इसके अलावा क्या होता है कि आपके कोल्ड ड्रिंक की बोतल है जो पहले 10 रुपए कांच की आती थी, छोटी वाली बोतल, तो वो थी अराउंड 200-250 ml की रहती है, वो उन्होंने रिसाइज करके रीपैकेजिंग करके उसका साइज बढ़ा दिया, तो वो आ गई उनकी बोतल 2 लीटर, 2.5 लीटर, 1.5 लीटर की। तो उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट सेम रखा, उसका पैकेजिंग चेंज कर दिया और डिफरेंट सेगमेंट या फिर डिफरेंट कंज्यूमर्स को उन्होंने वो डिलीवर किया। देन व्हाट इज एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज? एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज में कस्टमर सेम रखना है और आपको आपका प्रोडक्ट चेंज करना है। प्रोडक्ट चेंज करना है मतलब क्या है कि आप जो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर रहे हो या फिर आप जो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हो, तो उनको आपको टीम बनानी है, आपको एसोसिएशन करना है अलग अलग बिजनेसेस के साथ में, और आपके कस्टमर के पास जब जाओगे तभी एक आप कंप्लीटली एक सूट लेके जाओगे तो वो चेक कर सकते हैं। ओके, सो उसके बाद में हमने चेक किया कि 10 स्ट्रैटेजीज इसके लिए, 9R and 1D। ओके, सो विल नॉट डिस्कस दैट। मूविंग अहेड, ये था कि लॉकडाउन के बाद में हम क्या करेंगे, कि व्हाट आर द इंटरनल अपॉर्चुनिटीज, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद में जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग लॉकडाउन, अभी ये लॉकडाउन 3.0 स्टार्ट हो गया और ये कितना एक्सटेंड होगा किसी को आइडिया नहीं है। गवर्नमेंट इज ओपनिंग फ्यू बिजनेसेस स्लोली, बट हमको अभी भी क्लियर पिक्चर नहीं है कि हमारा बिजनेस वापस कब स्टार्ट होगा। ओके, सो ये ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड आपको क्या करना है। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट विच वी डिस्कस, कम्युनिकेट, कि आपको कम्युनिकेट करना है। Communication is the only medium right now which we can do with our customers, with our employees, with our vendors and with our prospects। इससे क्या होगा कि आपके जो ये 4 पिलर्स है, जिसके वॉल्स है, जिसके ऊपर आपका बिजनेस खड़ा है, तो ये अलग अलग आप सिर्फ आपका
अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उनके साथ में कम्युनिकेट करोगे, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो उनको आप इमोशनली मैसेजेस भेज सकते हो कि वी आर देयर विथ यू, और इफ एनीथिंग विच वी कैन हेल्प यू जस्ट लेट अस नो। उसके अलावा आप टिप्स एंड ट्रिक्स भेज सकते हो, न्यूज़लेटर्स भेज सकते हो। कौन सा मीडियम हो सकते हैं? एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीडियोस, ब्लॉग्स, बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स है, मीडियम्स है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, वाह, सो दिस वाज द यस्टरडे सेशन। ओके, तो जिसमें हमने चेक किया कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन हम क्या करेंगे, आफ्टर द लॉकडाउन हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें हमने देखी। नाउ the abc.exe. Okay, so abc क्या है? So this is the starting of today's session. So abc is since we are into the technology based company, we know the exe or software language. So anyone who knows these softwares, एक फाइल आती है .exe की, जो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो आपके लैपटॉप में या फिर आपके डेस्कटॉप में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है वो, और आपके उसके ऊपर काम कर सकते हो। ओके, सो अभी ऐसा किस किस को लगता है कि आफ्टर दिस लॉकडाउन, सब लेट से 17 को ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आपका बिजनेस ओपन हो जाएगा, आपके दुकान ओपन हो जाएंगे, आपके वेयर हाउस रहेंगे वो ओपन हो जाएंगे, आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रहेंगे वो ओपन हो जाएंगे, एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग, और आप जैसे पहले बिजनेस होता था वैसे ही आपका बिजनेस होगा। ऐसे कितने लोगों को लग रहा है? जस्ट टाइप, आपको क्या लग रहा है कि इट विल बी सेम और डिफरेंट? टाइप सेम अगर आपको लग रहा है कि हाँ पहले जैसे बिजनेस था वैसे ही होगा, पकड़ के चलो कि 10-15% हम कम प्रोड्यूस कर सकते, बट इट विल बी सेम और डिफरेंट। ओके, यस, इट विल बी डिफरेंट, राइट राइट राइट, यस। तो ये डेफिनेटली डिफरेंट होने वाला है। तो ये क्या है कि अगर हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये एक वॉर है, अगर हम कारगिल वॉर भी अगर देखेंगे तो वो भी बहुत टाइम तक चला था विद दी पाकिस्तान, और हमने उसमें काफी अच्छा, हमारे सोल्जर्स ने काम किया था, एंड वी वन दैट बैटल। तो ये भी एक बैटल है विथ कोरोना, जो ह्यूमन एंटायर वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके लिए वो एक एनिमी है, बट यस इट इज मोर देन एनिमी फॉर आवर बिजनेस, कि एक एनिमी से बहुत बड़ा, वी कैन से मॉन्स्टर, एक वो छोटा सा पार्टिकल है, बट इट बिकेम ए मॉन्स्टर फॉर अस, फॉर बिजनेसेस लाइक अस। तो ये एक डिफरेंट पार्ट होने वाला है। तो हर एक बैटल के पहले या फिर हर एक वॉर के पहले एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि वो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कि ये वॉर हम कैसे जीते और कैसे हम आगे वापस सस्टेन करें और सक्सीड करें, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये व्हाट इज abc.exe, सो abc का फुल फॉर्म है यहाँ पे। So first is assessing the situation, then build a plan and communicate an execution, right? So assessing the situation क्या होता है कि आपको क्या करना है अभी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, आपको असेसमेंट करना है आपके कस्टमर्स का। You have to check what is impact in your customers mind due to this coronavirus, कि कोरोना वायरस से आपके कस्टमर के दिमाग में या फिर उनके मन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके पर्सनल लाइफ में, उनके बिजनेस में। अगर आपका बिजनेस B2B है तो आपके कस्टमर को वो क्या क्या सिचुएशंस फेस कर रहे हैं। अगर मे बी आपका बिजनेस रहेगा B2C, तो आपका टारगेट ग्रुप रहेगा वर्किंग क्लास, या फिर स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या फिर हाउसवाइफ्स हो सकती है, या फिर IT प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, मीडियम क्लास बायर्स हो सकते हैं, या फिर HNIs हो सकते हैं। तो हर एक के लाइफ में कोरोना का इम्पैक्ट है। तो आपको ये पहले निकालना है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना इन योर कस्टमर्स माइंड, उनके पर्सनल लाइफ हो, उनके बिजनेस की स्ट्रैटेजी हो, तो उसके अंदर क्या हलचल हुई है। तो ये आपको सिचुएशन
फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये डायग्नोस करना है आपको। ये डायग्नोस क्यों करना है? आपको अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ योर कस्टमर, व्हाट इज मोटिवेटिंग देम, आपको वो चेक करना है। व्हाट इज मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर योर कस्टमर्स। उसके बाद में व्हाट इज बिहेवियर ऑफ योर कस्टमर, कि उसका बिहेवियर क्या चेंज हो गया है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसका उसको हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। ये आपको पहले पूरा जज करना है, आपको सिचुएशन उसकी पहचाननी है, राइट। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपके टीम मेंबर्स जो है तो उनका आपका असेसमेंट करना है, कि उनके भी मन में एक फियर है, दे आर ऑल्सो वरिड कि क्या होने वाला है, उनको पिक्चर क्लियर नहीं है। सो जो भी आप ये असेसमेंट करोगे आपके कस्टमर्स का, सो इन्वॉल्व योर एम्प्लॉयज और योर टीम ऑल्सो इनटू द एनालिसिस और असेसमेंट। ओके, तो इससे क्या होगा कि उनको भी एक ट्रस्ट क्रिएट होगा कि ओके वी आर वर्किंग विद कंपनी ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, कि जहाँ पे हम डेली रूटीन के काम नहीं कर रहे, ये कुछ अलग है जिससे हमारी कंपनी अलग मोड पे जा सकती है, राइट। तो आप क्या करोगे इसमें, आपके टीम मेंबर्स को साथ में लेके आपके कस्टमर्स को असेसमेंट करोगे। अब ये असेसमेंट कैसे होगा, यू कैन चूज 10 और 15% ऑफ योर एंटायर कस्टमर की। अगर लेट से आपके 100 कस्टमर्स है, 10-15 कस्टमर्स से आप बात कर सकते हो जो आपको एक्चुअल सिचुएशन बता सकते हैं, कि अलग अलग अगर आपके बिजनेसेस में है, वो अलग अलग डोमेन में है, तो आप उनसे बात कर सकते हो कि व्हाट इज द सिचुएशन। आप एक क्वेश्चनर बना सकते हो, आप उनके साथ में शेयर कर सकते हो, वो फिलअप करेंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली द सिचुएशन। आफ्टर गेटिंग दिस सिचुएशन या फिर असेसमेंट करने के बाद आपको प्लान बनाना है। द सेकेंड पार्ट ऑफ एबीसी इज बिल्ड अ प्लान। तो हर एक वॉर में जैसे कि अगर ये हम चेक कर सकते कि हमारे सोल्जर्स क्या करते कि पहले पूरा एक सिचुएशन क्या है वो देख लेते कि एनिमीज कहाँ कहाँ पे उनके बंकर से क्या क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंगली फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं। तो माइट भी प्लान ए हो सकता है, प्लान बी हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप भी आपके प्लान्स बना सकते हो। सो यू हैव टू मेक अ फुल प्रूफ प्लान। वो ए बी सी आप जितने भी प्लान्स बना सकते हो, तो प्लान बनाना है आपको। तो प्लान क्या हो सकता है कि आपको इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको यू हैव टू चेंज एवरीथिंग। आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है, आपके डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं वो आपको चेंज करने पड़ेंगे। चेंज द कॉन्ट्रैक्ट विथ योर लैंडलॉर्ड, विथ योर सप्लायर्स, विथ योर एम्प्लॉयमेंट के आपके जो ये रहेगा ऑफर लेटर है या फिर उनके डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको कस्टमर्स का बिहेवियर चेक करके उनके पॉलिसीज में आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको मार्केटिंग मटेरियल चेंज करना पड़ेगा। आपके जो बिजनेसेस के अंदर प्रोसेसेस है वो प्रोसेसेस आपको चेंज करने पड़ेंगे। और इन सारी चीजों के लिए आपको अलग अलग प्लान्स बनाने पड़ेंगे। जो अभी आपका मार्केटिंग मटेरियल जो है, अभी आप लेट से यू आर डूइंग मार्केटिंग ऑन यूजिंग फ्लायर्स या फिर प्रिंट मीडियम पे आप थे, तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ अभी कोई भी प्लेटफॉर्म, नाउ in yesterday's session also I discussed that we will go for the online mediums, जैसे Facebook हो गया, Instagram हो गया, Twitter पे आप जा सकते हो। आपका कस्टमर या फिर आपका टारगेट ग्रुप कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंगली आप आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो। ओके, आप इंडिया मार्ट पे जा सकते हो जहां से आपको इंक्वायरीज आ सकती है। आप ट्रेड इंडिया है, जस्ट डायल है, ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जहां आप जा सकते हो और आपको वहां से लीड्स आ सकती है। बट यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा आपका मार्केटिंग मटेरियल जो रहेगा। यू हैव टू चेंज योर मार्केटिंग मटेरियल जो आपको सेल नहीं करेगा, जो आपको अवेयरनेस स्प्रेड करेगा। सो आपको आपके कस्टमर को अवेयर अवेयर करना है इंस्टेड ऑफ सेलिंग। सो इससे क्या होगा कि कस्टमर को ये लगेगा कि ओके, कि बिकॉज एवरी वन साइकोलॉजी चेंज। अगर मैं बाहर जाता हूँ कोई अर्जेंट काम के लिए, तो तभी भी मैं ये चेक करता हूँ कि मुझे 4 चीजें हैं, तो इसमें से इम्पोर्टेंट चीजें क्या है मैं वही परचेस करता हूँ। 3 चीजें मैं लेता हूँ, एक चीज मुझे नहीं चाहिए। सो माई बाइंग कैपेसिटी इज चेंज, कि मुझे अगर जो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैं वही चीज लूंगा। तो आपको आपके कस्टमर के माइंड में अवेयरनेस क्रिएट करना है कि
दिस इज आवर प्रोडक्ट, ये आपको क्या हेल्प करेगा ड्यूरिंग दी लॉकडाउन या फिर आफ्टर दी लॉकडाउन, या फिर आपको बिजनेस इसके आगे जो चलने वाला है उसके लिए, या फिर वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो अलग अलग कोचिंग हो रहे हैं अभी, अलग अलग कोर्सेस है ऑनलाइन अवेलेबल। तो जो आईटी में है, तो द सिचुएशन इज लाइक कि हर एक को प्रॉब्लम्स है, हर एक को अभी ये नहीं पता चल रहा है कि उनका जॉब का क्या होगा, जॉब रहेगा नहीं रहेगा, तो वो उनका स्किल एनहांसमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो कोर्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि यू कैन बिल्ड योर स्किल्स, या फिर आप यू कैन एनहांस योर स्किल्स टू बिकम रेडी फॉर नेक्स्ट इनिंग ऑफ योर करियर। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आपका प्लान बनाना पड़ेगा, आपका मार्केटिंग मटेरियल चेंज करना पड़ेगा, right? So A is assessing the situation, B is build a plan, the third one is communication and execute. All right, so इसमें क्या करना है आपको, आपका कम्युनिकेशन जो मैंने कल के सेशन में भी बताया था, द कम्युनिकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। बहुत सारे लोग ऐसे कि उन्होंने एडवर्टीजमेंट करना छोड़ दिया, मार्केटिंग करना छोड़ दिया, क्यों? just because of we are not doing any sale or we are not doing any business right now, so why to invest in the marketing part? तो अगर हम मार्केटिंग नहीं करेंगे तो अभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा we will start our marketing again, but this is very wrong strategy। अगर आप आज कम्युनिकेशन नहीं मेंटेन करोगे, आज आप मार्केटिंग नहीं करोगे, you will lose your customers, you will lose your prospects, क्योंकि आपके जगह पे कोई दूसरा कॉम्पिटिटर मार्केटिंग कर रहा है, लुकिंग एट द करंट सिनेरियो, वो मार्केटिंग कर रहा है। सो ह्यूमंस मेमोरी इज वेरी वीक। अगर मेरे सामने कंटिन्यूस एक चीज बार बार आ रही है 4-5 दिनों से, जब भी मुझे 5वें दिन कोई वो आइटम की जरूरत रहेगी या फिर वो प्रोडक्ट की जरूरत रहेगी, आई विल गो फॉर विच आई सॉ यस्टरडे। ओके, सो आपको भी वही करना है कि आपको अवेयरनेस क्रिएट करना है। सो आपको आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रखना है। यू हैव टू कम्युनिकेट फॉर द पेन्स एंड द प्रॉब्लम्स फॉर योर कस्टमर। अगर आप पहले जो कम्युनिकेशन था वंस इन अ मंथ था, तो अभी आपको वो बढ़ा के ट्वाइस इन अ मंथ करना पड़ेगा। सो यू हैव टू डबल योर और 2x योर कम्युनिकेशन, राइट? सो ये एक हो गया कस्टमर के साथ में। सिमिलरली आपको कम्युनिकेट करना है विथ योर टीम मेंबर्स ऑल्सो। सो टीम मेंबर हो गए, आपके पार्टनर्स हो गए, आपके वेंडर्स हो गए, इससे क्या होगा कि उनको ट्रस्ट क्रिएट होगा कि यस वी आर नॉट ऑन अ स्टैंड बाय मोड, वी आर वर्किंग एट द बैकग्राउंड। आज सुबह मैंने एक पिक्चर देखा था कि जिसमें ये था कि व्हेन फिशरमैन आर नॉट allowed to go for the fishing, they repair their nets। मतलब जब भी फिशिंग करने के लिए बारिश के दिनों में फिशिंग अलाउड नहीं रहता है, बहुत तूफान आते हैं समुद्र में, तो इसके लिए क्या होता है कि उनको बोला जाता है कि आप अभी फिशिंग करने नहीं जा सकते। तो तभी ऑल द फिशरमैन क्या करते हैं, दे स्टार्ट रिपेयरिंग देयर नेट्स। तो अभी हमारा सिचुएशन भी सेम ही है, अभी हम बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, बट वी कैन रिपेयर आवर नेट, वी कैन work on our business, right? So ABC is important. So this was the bonus part for the today, because I just learned about this yesterday only, so I thought this is the fresh thing we can discuss. So it was not in the first series of this session. I got to know about this ABC yesterday, so I tried to give it to you in today's session. Okay, so coming to the main part of the main topic of the day, right? So ABC में abc.exe में किसी को कैसा लगा ये what is ABC और ABC के बारे में what is your thoughts? Will it work for your business? It was good?
Yes, anyone? Yes, Sachin, thank you. Yeah, if we try it, then it will work. But if we just listen here and after the session we back to our work, so it won't will work for anyone, for me also, right? All right. So yes, coming for the mm topic of the day, that is 5 pillars of business. So anyone can tell what can be the 5 pillars of any business, anything. What do you think? What are the 5 pillars of your business? Yes, very true. Employees, teams, suppliers, marketing, customers, infra. Yes. So we'll go for the 5 pillars. What are those 5 pillars? Okay, the first one is very important. The heart of our business or heart of any business, that is product or our services, right? So without product or service, the business will not exist. So the first and very important part is your product and service. The second part is your clients. So as I heard or I learned, clients or customers are the assets of your business. So even though you have product, you have very good team, you have very good infra, you have investors, but if you don't have clients, so you can't do anything. If you have clients, even though you don't have products, you can create product for your customers or for your prospects, and you can sell to them. So clients are your assets. Even if I am into the business of softwares, looking at the current situation, if I start vegetable online vegetable providing services, and if I have thousands of customers, I can sell vegetables to them also, right? So clients are or customers are assets of our business. So third is team. So team is playing very important role in any business. So if you have product, if you have clients, but if you don't have the proper team, तो आपको वापस प्रॉब्लम आ सकता है. The next part is the leads. कि प्रोडक्ट्स है, कस्टमर्स है, टीम्स है, बट टीम किसके ऊपर काम करेगी? लीड्स नहीं है. या फिर आप अगर आपके पास 100 कस्टमर है, 100 कस्टमर्स को आप सेम प्रोडक्ट कितनी बार दोगे? सो यू नीड न्यू कस्टमर्स. तो नए कस्टमर्स कैसे आ सकते हैं? तो लीड्स की वजह से आ सकते हैं. सो लीड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो उसके बाद में फिफ्थ पिलर इज मार्केटिंग. अगर लीड लानी है तो आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा. इफ आई हैव वेरी गुड प्रोडक्ट विथ मी, आई एम हैविंग टॉप क्लास सर्विसेज विथ माय कंपनी, बट मेरे बाजू वाले शॉप में जो है उसको मेरे प्रोडक्ट की जरूरत है, मेरे सर्विसेज की जरूरत है, बट उसको मालूम ही नहीं है कि मेरे सर्विसेज क्या है या फिर मैं क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ. सो कुछ फायदा नहीं है, वो लीड जनरेट नहीं होगी. सो मार्केटिंग इज द फिफ्थ पिलर. कि जहाँ पे मार्केटिंग के अगर नहीं करोगे तो आपको बिजनेस नहीं होगा, राइट? सो we'll just have one quick poll here, right? So how many products or services do you provide? So I am launching the poll. Just tell me how many products or services do you provide uh, for your business. We'll wait for just more 10-15 seconds. I can see 4 have given the answer.
यस, आपके जितने भी प्रोडक्ट्स है या फिर आपके सर्विसेज है, कितने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज है आपके पास? ओके, still 7 are remaining. We'll just wait for 5 seconds. All right. So I'm just sharing the results here. So we have 4 participants who have products between 5 to 1 or 1 to 5, 6 to 10, 1, and more than 25, 3 participants. Okay. So yes, this was the quick poll for the understanding, right? So अलग अलग मोड पे अलग अलग प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज है आपके पास में, राइट? सो इवन दो इफ यू हैव गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या फिर टॉप क्लास सर्विसेज आप फिर भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, फिर भी प्रॉब्लम्स होते हैं कि आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है या फिर आपके सर्विसेज सेल नहीं हो रहे। तो उसके लिए क्या रीजंस होते हैं कि आपके पास टारगेट कस्टमर्स नहीं होते, कि आपको नहीं मालूम है कि आपका एग्जैक्टली टारगेट कस्टमर कौन है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। नॉट एबल टू सेल इनफ टू कस्टमर्स। अगर आपके रिक्वायरमेंट है कि मेरे महीने में 25 सेल होने चाहिए ऑफ कॉस्ट अराउंड 10,000 रुपीज टू मैनेज माई 20 कॉस्ट लिमिट्स, बट अगर मुझे 15 या फिर 20 मेरे सेल हो रहे हैं तो वो आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होता, तो आप इनफ कस्टमर्स को सेल नहीं कर पाते। आप तीसरी चीज है कि फीडबैक नहीं लेते हो आप, कि अगर मेरा कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस कोई कस्टमर नहीं लेता है तो वो उसने क्यों नहीं लिया या फिर क्या प्रॉब्लम था, तो उसके बारे में आप फीडबैक अगर लोगे तो आपको पता चलेगा कि इज देयर एनी प्रॉब्लम विथ माय प्रोडक्ट या फिर माय सर्विस और माय एम्प्लॉय जो उसके पास में गया था, या फिर वो कस्टमर को लेना ही नहीं था प्रोडक्ट, उसको सिर्फ इंक्वायरी करके छोड़ देना था। तो अगर आप ये फीडबैक नहीं लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। ओके, सो ये है। उसके बाद में नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट पेन ऑफ प्रोस्पेक्ट। तो पेन क्या होता है? सो एक एग्जांपल लेते हैं कि कंसीडर एन एवरी बिजनेस, जितने भी अभी वी हैव 16 पार्टिसिपेंट्स हियर, तो ऑल ऑफ योर डॉक्टर्स ऑफ योर बिजनेस या फिर आपके जो जो कैटेगरी में आप काम करते हो, सो यू आर अ डॉक्टर, आप डॉक्टर हो और आपके जो कस्टमर्स है जो वो है पेशेंट्स, उनको कभी तो पेन होता है, तभी वो आपके पास आते हैं आपके प्रोडक्ट या फिर आपके सर्विस लेने के लिए। अगर पेन नहीं रहेगा या फिर रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी तो वो आपके पास में नहीं आएगा। अगर मेरे पास में 10 किलो आटा पड़ा हुआ है तो मैं वापस मार्केट में जाके और 10 किलो नहीं लूंगा। मेरे पास जब बचेगा 1 किलो तब मुझे पता चलेगा कि नहीं मुझे अभी लाना चाहिए, वो मेरा पेन जनरेट हुआ और उसके अकॉर्डिंगली मैं मार्केट में जाऊंगा और वापस 10 किलो का आटा मैं लेके आऊंगा। ओके, तो ये सिंपल सिंपल सी चीज है। जो आपका प्रोडक्ट है तो उसके लिए आपको एग्जैक्ट कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे या फिर एग्जैक्ट कस्टमर्स को आपके जो भी उनका फीडबैक है लॉस्ट कस्टमर्स का तो वो लेना पड़ेगा, या फिर उनका जो पेन एरिया है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट वाज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ओके, so the second part is clients. Okay, so we'll go for another poll here again, right? So you have to tell how many clients do you have, and do you have, or how do you manage your clients and prospects list? Okay, आपको poll, just a second. All right, yeah. So how many clients do you have? 1 to 50, 50 to 100, 100 to 500, 500 and above? Yes. At the given time, अभी के अभी आपके पास में सब कस्टमर्स की लिस्ट है क्या, या फिर आपके प्रोस्पेक्ट की लिस्ट है क्या रेडी? इफ आई आस्क यू, आई नीड ऑल द डिटेल्स ऑफ मिस्टर ABC, जिन्होंने मुझे लास्ट मंथ में कुछ बिजनेस दिया था, लास्ट साल में कुछ बिजनेस दिया था,
सिर्फ डेटा मतलब कॉन्टेक्ट नंबर एंड उसका नाम नहीं. आई एम टेलिंग अबाउट द all the details of your clients. Okay, yeah, I'll just close this poll in next 1 minute, uh, 5 seconds. Okay, yes, all right. So here are the results. So 1 to 50 clients है 46% लोगों के पास में. Then 15, 23, 15, and yes, it's good. 85% लोगों के पास में उनके clients and prospect की list है. That's good. That's great, right? So आपके client के data आपके पास है, आपकी list, client की list आपके पास है, फिर भी आपका business properly नहीं होता. क्यों होता है वैसे? तो उसको कुछ रीजन है. यू फॉरगॉट ओल्ड कस्टमर्स. ऐसे है कि अभी यहाँ पे जो रिजल्ट्स है कि 100 to 500 के बीच में जो कस्टमर्स है, तो वो 3 लोगों के पास, टोटल 5 लोगों के पास पार्टिसिपेंट्स के पास ऐसे कि उनके पास 100 के ऊपर कस्टमर्स है. तो बहुत बार ऐसे होता है कि वी फॉरगॉट आवर ओल्ड कस्टमर्स जिन्होंने अच्छा बिजनेस दिया था, उनको भी हम कांटेक्ट करना भूल जाते हैं. क्यों? बिकॉज वी आर रनिंग बिहाइंड द न्यू कस्टमर्स. इसके अलावा जो भी हमारे नए कस्टमर्स है उनके हम प्रायोरिटी पे लेते हैं और उनको हम कांटेक्ट में रखते हैं. बट ऐसा होता है कि जो पुराने वाले कस्टमर्स है जिन्होंने काफी अच्छा बिजनेस दिया था एंड दे कैन गिव मोर बिजनेस, बट जस्ट वी forgot to contact our old customers, we are losing so much of business. ऐसा हो सकता है कि हाँ, मुझे मेरा पुराना कस्टमर अच्छा और बिजनेस भी दे सकता है, बट due to the busy schedule or running behind the new clients, I forgot and I may lose my business. जो रेडी बिजनेस है, जिससे मुझे कुछ एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है, कुछ मार्केटिंग नहीं करना है. I just need to keep the good contacts with my old customers, right? So second part is types of customer. So A, B, C, D types are there. So what is A, B, C, D? Anyone can tell me, or do you heard about A, B, C, D or HP and PLP? Anyone? Type in the chat box. Do you know what is A, B, C, D? Okay, all right. So in any business, कोई भी बिजनेस हो, छोटा या फिर बड़ा, जो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जिसमें छोटी चाय की दुकान हो या फिर 5 स्टार होटल हो, यहाँ पे ये चारों टाइप के कस्टमर्स दिखते हैं. ए इज ऑसम, जो हमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, या फिर हम उसको जो भी प्रोडक्ट देते हैं तो वो हमेशा खुश रहता है. आपके पेमेंट्स टाइम पे डिलीवर होते हैं, पेमेंट रिलीज होते हैं, या फिर ये आपके लिए दूसरों को आपका बिजनेस प्रमोट भी करते हैं. सो ये हो गए ऑसम. ए टाइप के कस्टमर्स होते हैं. बी आर लाइक बेसिक कस्टमर्स, कि जो वो आपके सर्विसेज से खुश है, जो आपका पेमेंट भी टाइमली देते हैं, बट कभी कभी कंप्लेंट करते हैं. बट वो कंप्लेंट ऐसे रहता है कि आप उससे ग्रो कर सको, तो वैसा वो फीडबैक, इट्स काइंड ऑफ फीडबैक. पर ये कभी आपका बिजनेस प्रमोट नहीं करेंगे. ये ठीक है, मेरा काम हो गया, मैंने पैसे दे दिए, दैट्स इट. सो ये बेसिक कस्टमर हो गया. Okay, so C type is like complaining. They will do all the time complain about your product या फिर सर्विस. जो ऐसे होते कि आपका पेमेंट रोक के रखेंगे, बोलेंगे कि आपके प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. बहुत बार हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. सो दीज आर लाइक सी टाइप के कस्टमर, जो हमेशा कंप्लेन करेंगे. एंड डी इज डेडली कस्टमर. सो ये क्या करते हैं? ये सिर्फ आपके प्रोडक्ट लेते हैं
या फिर आपकी सर्विस लेते हैं, बट इसके लिए भी वो बहुत टाइम लगाते हैं कि लेट से अगर आपका एक सेल क्लोज होता है 4 दिन में, तो ये लेंगे 20 दिन। 20 दिन के बाद में वो आपको पेमेंट टर्म के लिए बहुत बार पूछेंगे या फिर निगोशिएट करेंगे, उसमें आपको ऑफर्स डिस्काउंट्स मांगेंगे। उसके बाद में आपका पेमेंट्स टाइम पे नहीं रिलीज करेंगे। पेमेंट्स टाइम पे रिलीज नहीं करेंगे, उसके अलावा ये आपके बारे में निगेटिविटी स्प्रेड करेंगे मार्केट में, जो आपको फीडबैक तो नहीं देंगे कि आपके प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, बट ये मार्केट में ये स्प्रेड करेंगे कि इनके प्रोडक्ट में ये इशू है, आप इनका प्रोडक्ट कभी भी मत लो, राइट। तो ऐसे कस्टमर्स होते हैं। तो किसके किसके पास में ये चारों टाइप के कस्टमर्स है, या फिर सी एंड डी टाइप के कस्टमर्स किसके पास ज्यादा है? एनीवन जस्ट टेल मी। ए बी सी डी, चारों टाइप के कस्टमर्स है आपके पास में। हर एक बिजनेस में होते ही है, हर एक टाइप के बिजनेस में ये कस्टमर्स होते हैं, राइट। सो what is HP NP LP now? So high priority customers, medium priority customers and low priority customers. High priority customers are like A type customer कि जो आपको आते हैं, परचेस करते हैं, पेमेंट टाइम पे देते हैं, उनको प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो कुछ निगोशिएट भी नहीं करते और आपको अच्छा फीडबैक भी देते हैं। ओके। एमपी इज लाइक मीडियम प्रायोरिटी, तो ये बी टाइप के कस्टमर होते हैं, उनको मीडियम प्रायोरिटी पे है, वो आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज की रिक्वायरमेंट मीडियम लेवल पे है। तो वो क्या करेंगे कि आपके आपसे इंक्वायरी करेंगे, थोड़ा सा निगोशिएट करेंगे, फिर हाँ नहीं करेंगे, उसके बाद में वो आपसे परचेस करेंगे। ओके। और उसके बाद में अगर कुछ कंप्लेंट रहेगा तो वो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे। सो बी इज लाइक एमपी इज लाइक बी टाइप के कस्टमर। एलपी इज लो प्रायोरिटी कस्टमर, जो सी एंड डी टाइप के होते हैं। तो ये अभी एच पी एम पी एल पी ये किसके लिए है और एबीसीडी किसके लिए है? एच पी एम पी एल पी इज फॉर स्टार्टअप्स, जिनके पास ऑलरेडी कस्टमर्स नहीं है। तो उनको ये ढूंढना पड़ेगा कि आपके हाई प्रायोरिटी कस्टमर्स कौन से हैं, आपके मीडियम प्रायोरिटी कस्टमर्स कौन से, जिससे आपका बिजनेस इमीडिएटली आप रनिंग कैपिटल जो होता है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओके। जो ऑलरेडी बहुत सारे से बिजनेस में है, तो वो चेक कर सकते हैं कि व्हाट आर देयर ए बी सी डी कस्टमर्स, ए टाइप के कौन से, बी टाइप के कौन से, सी टाइप के कौन से और डी टाइप के कौन से। सो हियर माय सजेशन विल बी स्टॉप डूइंग बिजनेस विद सी एंड डी टाइप के कस्टमर। ओके। यहाँ पे 80-20 रूल फॉलो होता है। जो आपका रेवेन्यू जो आता है 80% रेवेन्यू वो आता है ए और बी टाइप के कस्टमर्स के साइड से, बट आपका मैक्सिमम टाइम जो लेता है 80% टाइम वो जाता है आपके सी एंड डी टाइप के कस्टमर्स को हैंडल करने में। एम आई राइट? डू यू थिंक इट हैपेंड विथ योर बिजनेस कि आपका रेवेन्यू जो जाता है वो ए एंड बी कस्टमर से ज्यादा आता है, बट आपका टाइम जो जाता है वो सी एंड डी के टाइप के कस्टमर को जाता है? 80% टाइम will take C and D type के customer. Yes, true, very right. Yes. So my suggestion will be you have to identify this A B C D type के customer, C and D के type के customers के साथ में। इसके आगे लॉकडाउन के बाद में आपको धीरे धीरे स्टॉप करना है, या फिर अगर आप कंप्लीटली स्टॉप कर सकते हो तो इट्स योर चॉइस। सो आपको ए बी टाइप के कस्टमर्स फाइंड आउट करने में आपका टाइम ज्यादा जाएगा, वैसे कस्टमर्स आपको ज्यादा मिलेंगे, तो आपका बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा। ओके। सो द थर्ड पॉइंट इज बिजनेस ट्रैकिंग। जो बिजनेस ट्रैकिंग होता है, जो मैंने क्वेश्चन था मेरा कि डू यू हैव लिस्ट ऑफ ऑल योर कस्टमर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स विथ यू। तो इसमें क्या होता है कि आपका बिजनेस ट्रैकिंग नहीं होता आपके पास में कि मुझे कौन से कस्टमर ने कितनी बार इंक्वायरी की थी, या फिर मुझे कितनी बार उसने बिजनेस दिया है, बिजनेस दिया है तो कितने अमाउंट का बिजनेस दिया है, तो ये आपके पास ट्रैकिंग नहीं होता है, राइट। तो ये एक मेन प्रॉब्लम होता है। क्लाइंट्स का दूसरा रूप होता है प्रोस्पेक्ट्स। तो प्रोस्पेक्ट में क्या प्रॉब्लम होती है कि डिले इन आंसरिंग द क्वेरीज। जो ये नया प्रोस्पेक्ट जो होता है, जो आपका ऑलरेडी कस्टमर नहीं है, दोज आर प्रोस्पेक्ट्स। तो आप नॉर्मली प्रॉब्लम कहाँ पे होता है कि डिले इन आंसरिंग क्वेरीज। आप
उनको जो भी उनकी क्वेरीज होती है तो आप भूल जाते हो, या फिर आप दूसरे कस्टमर्स या फिर दूसरे आपके कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हो, सो आप इन प्रोस्पेक्ट को टाइमली डिलीवर नहीं कर पाते हो। ओके, सो ये एक होता है डील इन सेंडिंग कोटेशंस, आप कोटेशंस टाइम पे नहीं डिलीवर कर सकते या फिर दे नहीं पाते उनको, तो ये एक होता है। नर्चरिंग नहीं होता है, अभी जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स होते हैं तो उनको नर्चरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आप उन्होंने आपकी सर्विस ऑलरेडी ली है, तो उनको आपके प्रोडक्ट या फिर आपके सर्विसेज के बारे में मालूम है, दे जस्ट कीप रिपीट बिजनेस विथ यू। तो नए प्रोस्पेक्ट्स को अगर आपका कस्टमर बनाना है तो नर्चरिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी नर्चरिंग में क्या होता है कि इमीडिएटली जब भी कोई आपको इंक्वायरी करेगा तो उसको थैंक यू मैसेज या फिर आपके साइड से कुछ गुड गेस्चर आपके साइड से दिखना चाहिए, तो थैंक यू मैसेज एक चला गया। उसके बाद में आपने आपकी कंपनी की वेबसाइट उसको दिखाई, उसके बाद में आपके जो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के गुड फीचर्स जो है तो वो आपने उनको बताए, उसके बाद में वो फीचर्स से उनको क्या बेनिफिट हो सकता है वो आप उनको बता सकते हो। तो ये हो गया नर्चरिंग। जो अगर एक लीड है कि मैं लेट से बी टाइप का कस्टमर हूँ या फिर बी टाइप या फिर मीडियम प्रायोरिटी का कस्टमर, मुझे प्रायोरिटी नहीं है उतनी, बट अगर आप मुझे नर्चर करते हो कि यस एक फीचर ऐसा हो जाएगा कि जिससे मेरी प्रायोरिटी मीडियम प्रायोरिटी से जा हट के हाई प्रायोरिटी बन जाएगी। लेट से आपने कुछ एक जो फाइनेंस में है, यहाँ पे फाइनेंस एंड म्यूचुअल फंड्स में है लेट से, या फिर लोन्स जो प्रोवाइड करते हैं, तो उन्होंने बोला कि मुझे अगर होम लोन लेना है, मार्केट में अभी फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8.5। ओके, और अगर मैंने एक जगह पे इंक्वायरी की, वो नर्चरिंग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ये पॉलिसी में ये लोन में आपको ये फैसिलिटीज मिलेंगी, ये फैसिलिटीज मिलेंगी, लुकिंग एट द करंट सिनेरियो कि अगर लॉकडाउन जैसा सिचुएशन कब जाके आता है, तभी हम आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 महीने का ईएमआई स्टॉप कर देंगे, तो आपको वो प्रेशर नहीं आएगा। अगर इस टाइप के कुछ पॉलिसीज किसी बैंक के लोन में उन्होंने दी है और अगर वो मुझे बताते हैं, सो आई बिकम हाई प्रायोरिटी कस्टमर फॉर देम, तो मैं मेरे लिए वो अच्छा है, आई विल गो टू देम एंड बाय देयर सर्विस। ओके, तो ये नर्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बहुत कम लोगों के पास में नर्चरिंग वो करते हैं। ओके, सो ये पॉइंट्स थे। गोइंग अहेड टीम, so I'll just take one more poll here. Okay, okay, all right. Team. Again, do you have sales team? If yes, what is the size of your team? Quickly, you can give the answers. What is the size of your sales team? Okay, next 5 seconds. Quickly, you can give your answers. Okay, all right, yes. So we have 30% who said they don't have team, and 70% people they have sales team around 1 to 5 team members. Okay, so those who are into the 30% or who said they don't have sales team, so they are one man army, so they themselves is one team for your sales. Okay, so you are team or you are sales executive for your business, so you can consider yourself into 1 to 5 category. All right, so here, yep,
सो टीम के रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? सो टीम में क्या होता है कि नॉट गेटिंग गुड टीम मेंबर, कि मैंने कहीं पे तो ये सुना था कि अगर अच्छा बंदा नहीं मिलता है, अगर अच्छा बंदा मिलता है तो वो ज़्यादा पैसे मांगता है, अगर ज़्यादा पैसे दिए तो वो ज़्यादा टाइम नहीं रुकता है, ज़्यादा टाइम रुका तो वापस वो अच्छा काम नहीं करता है। सो दिस इज साइकिल। सो यहाँ पे क्या होता है कि आपका टीम मेंबर या फिर आपकी टीम आपको अच्छी नहीं मिलती है। तो क्यों नहीं मिलती है? तो इसका रीजन है कि दे आर नॉट अलाइंड विद द कंपनीज विजन। कंपनी का विजन अगर उनको क्लियर हो तो वो आप अच्छे से कर सकते हो, या फिर यू कैन इजीली अचीव योर गोल्स, कंपनी गोल्स। सो आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपका विजन, कंपनी का विजन अलाइन करना है इंडिविजुअल वो पर्टिकुलर बंदे का विजन जो रहेगा या फिर उसके ड्रीम्स जो रहेंगे उसके साथ में, एंड देन इट बिकम द बिग विजन ऑफ योर कंपनी एज वेल एज योर एंटायर टीम। तब जाके ये काम होता है। बट ये क्यों नहीं होता है, या फिर आपके जो परफॉर्म नहीं करते हैं एम्प्लॉयज, तो उसका मेन रीजन यही होता है। थर्ड रीजन इज लैक ऑफ डोमेन नॉलेज। जो आपके कंपनी या फिर आपके प्रोडक्ट के बारे में उनको नॉलेज है तो वो थोड़ा कम होता है। अगेन ट्रैकिंग नहीं होता है कि कितने लीड्स हैं उनके पास में, कितने लीड्स उन्होंने जनरेट किए, कितने लीड्स के ऊपर कौन से स्टेज पे वो अभी काम कर रहे हैं या फिर कौन से स्टेज में वो अटक रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये ट्रैकिंग नहीं होता है, उसकी वजह से थोड़ा सा डिले होता है आपका सेल्स में एंड द परफॉर्मेंस ऑफ योर टीम मेंबर्स। ओके, तो ये चार अगेन रीजंस हैं। मूविंग अहेड, लीड्स। Okay, how do you maintain your leads? Register, Excel sheet, or any CRM application, or don't have any system to manage your leads? How do you manage your leads? Register, Excel sheet. Yes, next 5-7 seconds. I'm getting responses from 7 or 8 members only. So it doesn't matter if you don't have any system, no issues. You can just mention that. All right. Okay. So 50%, 50-50 is for Excel sheet and register, and one person or one participant is using CRM. So that is coming to the 13%. Okay. So leads, as I mentioned, that leads are very important for any business, right? So leads के लिए क्या प्रॉब्लम आते हैं? Leads, आप बहुत एफर्ट से लीड जनरेट करते हो, कोई भी लीड फ्री में नहीं आती है। अगर आपको बिजनेस रेफरल से भी मिलता है या फिर आपके पुराने कस्टमर से भी मिलता है तो फिर भी वो एक लीड है और उसके लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, तब जाके ये आपको लीड या फिर आगे के बिजनेस में कन्वर्ट होता है, राइट? सो यहाँ पे हम क्या चेक कर सकते हैं कि लीड से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। सो नॉट एबल टू टेक रेगुलर फॉलोअप्स विथ योर प्रोस्पेक्ट, कि अगर मैंने लीड जनरेट भी कर ली पर मैं बहुत बिजी हो जाता हूँ कि मेरे डेली रूटीन के काम में, और मैं सेल मेरा क्लोज नहीं हो पाता है। द सेकेंड पार्ट इज नॉट एबल टू ट्रैक प्रीवियस डिस्कशंस विद द प्रोस्पेक्ट, कि मैंने ऐसा है कि मेरे लॉकडाउन के पहले मेरा एक क्लाइंट था जिससे मेरा डिस्कशन चालू था, एंड आज मेरा वो डिस्कशन उसके साथ में हो रहा है आफ्टर ऑलमोस्ट 2 months। तो मुझे वो याद करना पड़ता है कि क्या बात हुई थी मेरी ये कस्टमर के साथ में, मैंने उसको क्या बोला था। अगर मेरा डॉक्यूमेंटेड रहेगा तो दैट्स गुड, बट मैंने हियर वी टेक एन एग्जांपल ऑफ रियल एस्टेट, कि मेरा एक 2 BHK फ्लैट में परचेस करने जा रहा हूँ और मुझे
जो एग्जीक्यूटिव था, सेल्स एग्जीक्यूटिव, उसने बोला कि वी कैन ऑफर यू समथिंग एक्स्ट्रा, हम आपको एक कवर्ड पार्किंग हम आपको फ्री में दे देंगे अगर आपने आज बुकिंग किया तो, या फिर अगर आपने ये जल्द से जल्द बुकिंग किया तो, सो वी कैन ऑफर यू द पार्किंग एट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी प्राइस कुछ 2-2.5 लाख रुपए रहेंगे। ओके, बट ये लॉकडाउन शुरू हो गया, वो भी बिजनेस बंद है, मैं भी शांत हूँ। कल जाके मैं जब लॉकडाउन शुरू हो जाता है, खत्म हो जाता है, एंड मैं जाता हूँ कस्टमर बिल्डर के पास में, और मैंने उसको बोला कि आपने ये प्रॉमिस किया था कि आप मुझे एक पार्किंग दोगे। अगर उनके पास में ये चीज डॉक्यूमेंटेड रहेगी तो ठीक है, नहीं रहेगी तो दे आर ऑलरेडी फेसिंग लॉसेस, तो आप भी वहां पे जाओगे, उसको याद नहीं रहेगा कि सर नहीं, हमने कुछ अलग कमिटमेंट किया था, ये था वो था, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये उसको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में क्या होता है कि can't track how many leads converted or failed with reason, white failed, कि बहुत कम बिजनेसेस ये ट्रैक कर सकते हैं कि उनका बिजनेस लॉस हुआ है, या फिर एक लीड कन्वर्ट नहीं हुई है तो उसका रीजन क्या है, या फिर कन्वर्ट हुई है तो उसका रीजन क्या है, राइट? तो ये ट्रैकिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उसके बाद में है कि कांट प्रायोरिटाइज लीड एज पर कैटेगरीज, वी गिव प्रायोरिटी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। यहाँ पे क्या होता है कि एक इम्पोर्टेंट लीड है जो मुझे प्रायोरिटी पे लेनी चाहिए, बट मेरे ऑलरेडी स्टैक में 10 लीड्स है जिनको मुझे फॉलो अप करना है, तो मैं वो प्रायोरिटी पे ना लेते हुए मैं बाकी के लीड्स है, जब तक मैं वो लीड तक पहुंचता हूँ जो मुझे प्रायोरिटी पे लेनी थी, वो ऑलरेडी कहीं दूसरे जगह पे या फिर अपने कॉम्पिटिटर के पास में जाके क्लोज हो जाती है, राइट? तो ये लीड्स के बारे में, लीड्स आर वेरी सेंसिटिव। अगर आप टाइमली फॉलोअप नहीं लेते हो, आप प्रॉपरली फॉलोअप नहीं लेते हो, आप सिस्टम मेंटेन नहीं करते हो, तो आप बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग लीड्स। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज द मार्केटिंग पार्ट। तो इसमें क्या है कि how do you promote your products and services, which medium gives you maximum leads, and what is the cost of one lead? All right, so here is another poll कि आप कौन से मीडियम यूज करते हो, ऑफलाइन मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, वेबसाइट से आपके आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हो, होर्डिंग से, अदर कुछ अगर आपका ये रहेगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव? यस, or have you ever calculated the cost per lead and cost per conversion? Okay, next, last 10 seconds. Yes, thank you. So here is the result. Which medium do you use for marketing? So many are there, those who are doing offline marketing, social media marketing, websites, in participating exhibition, only one, other, all of the above. Okay, great. And how many of you calculate cost per lead and cost per conversion? Okay, 3 are calculating, and 5 are not calculating. Okay, no issues. So these are the last pillar of any business. So there are 75 different mediums, as we discussed yesterday also. So there are 75 different mediums, out of which the print medium are like not, we cannot suggest, or anyone cannot go for print medium. Of course we can go for online platform, जिसमें अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर है। नाउ द ट्रेंडिंग पार्ट इज द ऑनलाइन मीट्स, जहाँ पे अलग अलग बिजनेसेस जस्ट लाइक OEM,
हमने जो कंडक्ट किया है या फिर हम लोग कंडक्ट करते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बट हियर वी कैन टॉक अबाउट आवर बिजनेस, वी कैन प्रमोट आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और जहां से एक दूसरे के लिए लीड्स जनरेट होती है और हम वहां से बिजनेस ले सकते हैं. सो देयर आर 75 डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग मीडियम्स. तो यहाँ पे उसमें से कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम है हमें वो नहीं पता चलता है कि हाउ मच अमाउंट नीड्स टू स्पेंड ऑन विच मीडियम. हम लोग, मेरा कॉम्पिटिटर फेसबुक कैंपेनिंग करता है तो इसलिए मैं भी करता हूँ. मेरा कॉम्पिटिटर होर्डिंग्स लगाता है इसलिए मैं भी होर्डिंग लगाता हूँ. मेरे कॉम्पिटिटर ने एक पार्टी अरेंज की है तो मुझे भी वो करनी चाहिए, सो मैं वो अरेंज करता हूँ, राइट. बट ये मुझे कभी ध्यान में नहीं आता कि मुझे कितना अमाउंट वहां पे डालना चाहिए या फिर मुझे कौन सा मीडियम मेरे लिए ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप मार्केटिंग करते हो. अगर मैं, मेरी वेबसाइट है तो वेबसाइट से भी मुझे कुछ लीड्स आती है, तो वेबसाइट के लिए भी मैंने लेट से 15,000 रुपया स्पेंड किया है. मैंने अलग से एसीओ के लिए मैंने अगेन 20-30 हजार रुपये खर्च किया है. सो इन ऑल मैंने मेरे वेबसाइट के ऊपर 40,000 एक साल के लिए मैंने स्पेंड किया है. तो मुझे उससे कितनी लीड्स मिली है, मेरा एक लीड का कॉस्ट कितना है, मेरा एक कन्वर्जन का कॉस्ट कितना है. तो ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो करना बहुत जरूरी होता है. ओके, सो एज पर स्पेंड नॉट गेटिंग रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ बिजनेस. वही जैसे मैंने अभी बोला कि वेबसाइट है, मैंने 40,000 स्पेंड किया है, बट मुझे साल भर में सिर्फ 50 लीड्स आए और उसमें से मैं सिर्फ कन्वर्ट कर पाया 5 लीड्स. तो अगर मेरा प्रोडक्ट है 10 लाख का तो 5 कन्वर्जन इज ऑल्सो गुड. बट मेरा साइज है, टिकट साइज है हार्डली 1,000 रुपए का, और वैसे मैंने अगर 5 लीड कन्वर्ट किए तो 5,000 का मेरा बिजनेस हुआ. सो दैट इज रिस्की. तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा मीडियम आपके बिजनेस के लिए यूजफुल है. तो ये सारी चीजें मैटर करती है. ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन हियर कि डू यू थिंक these are 5 pillars, these are real pillars for your business? ये 5 पिलर आपके बिजनेस के लिए हेल्पफुल है या फिर ये इंपॉर्टेंट पिलर्स है आपके बिजनेस के लिए? यस, द पिलर्स कैन बी वेरी, बिजनेस टू बिजनेस इट कैन बी वेरी, कि मेरे बिजनेस के लिए मैं ये 5 पिलर कंसिडर कर रहा हूँ, किसी दूसरे बिजनेस के लिए और एडिशनल कुछ पिलर आ सकता है. ऐसा हो सकता है कि हाँ, मेरे इसके लिए इन्वेस्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरे केस में वेंडर आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो वो भी हो सकते हैं. बट ओवरऑल अगर कंसिडर करें कि सभी टाइप के बिजनेस के लिए, अगर मैं चाय का बिजनेस भी कंसिडर करता हूँ तो वहां पे मुझे मार्केटिंग करना पड़ता है. मुझे मेरा जो छोटा स्टॉल रहेगा तो उसको मुझे नाम देना पड़ेगा, पेंटिंग करना पड़ेगा, राइट. वहां पे मुझे रेट लिखना पड़ेगा, तो ये मेरा मार्केटिंग हो गया. मुझे कस्टमर्स आएंगे, मेरे प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे, या फिर मेरा प्रोडक्ट कैसा है, मेरे चाय की टेस्ट कैसी है, तो उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है. तो ये 5 पिलर छोटे बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस तक हर एक को इम्पोर्टेंट है. ऑलराइट, सो ये सारे पिलर्स सब मैनेज कर पाते हैं क्या? अभी आई डोंट हैव पोल फॉर दिस, but do you think you have you can manage all these pillars in your business? What was the pillars? The first one was product, clients, then team, then your leads and marketing. Are you able to manage all your 5 pillars? Okay, okay, yes, many know. So what if all these problems can be solved by using one simple online application? अगर एक simple application हो जो आपको ये सारी चीजें मैनेज करके दे सकता है. ओके, जिसमें आपके प्रोडक्ट्स भी मैनेज हो, जिसमें आपके टीम्स भी मैनेज हो, उनके टारगेट्स मैनेज हो सकते हैं, आपके लीड्स कौन से मीडियम से आए हैं, कैसे आए हैं, कौन सा लीड कौन से स्टेज में है, ये सारे मैनेज हो सकते हैं. आपके कंपनी का टारगेट है, आपका लीड नर्चरिंग इसमें हो रहा है. ऐसा अगर कुछ एप्लीकेशन रहेगा, सो
it can be helpful for you. Yes, yes. Okay, okay, yes, it will help. So here we come with sales steps. So this is our company's product, sales steps. The big note, the big note, I am not selling my product here. So many will think, okay, अभी ये सारी चीजें बता दिए, अभी खुद का प्रोडक्ट बता रहे हो, तो अभी हम पे ये आएगा कि ये आप परचेस करो. So I am not selling here my product. I am just telling that we can manage all these things in our product. Okay, so I'll just quickly tell about the sales steps. The sales steps is uh, this is around approximately 3 years old product, जिसपे हम अभी भी काम कर रहे हैं. बहुत सारे एनहांसमेंट हमारे इस ये प्रोडक्ट में हो रहे हैं. अलग अलग फेजेस में ये हमारा प्रोडक्ट डेवलप हुआ है. And we work around in 14 different industries जिसके अंदर ये काम हो सकता है, ये काम कर सकता है. तो हमने बहुत मार्केट रिसर्च किया, उसके बाद में हमने ये प्रोडक्ट डेवलप किया. ये क्वेश्चन जो थे, ये सारे क्वेश्चंस हमने चेक किए कि इसको ये सॉल्यूशन दे सकता है, तो डेफिनेटली यस. सो आई विल जस्ट टेल यू अबाउट द प्रोडक्ट फीचर्स. तो इसमें क्या क्या चीजें हैं. So what is sales steps? You can add and manage your leads, single और multiple products. अगर आपके multiple products हो तो आप easily leads manage कर सकते हो, उसमें add कर सकते हो. Manage all your leads from various sources and prioritize them easily. कि अलग अलग sources हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि वेबसाइट से है, फेसबुक से है, मेरा इंडिया मार्ट से है, जस्ट डायल से, अलग अलग मेरे सोर्सेस से जैसे मेरे लीड्स आते हैं, तो यहाँ पे एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे ये सब आते हैं, और यहाँ से मैं प्रायोरिटाइज कर सकता हूँ कि किसको क्या प्रायोरिटी देनी है. ओके, रिकॉर्ड ऑल योर फॉलो अप समरी ऑफ ईच लीड. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने लॉकडाउन से पहले किसी कस्टमर के साथ में या फिर किसी प्रॉपर बिल्डर के पास में मैं गया था, तो मेरा डिस्कशन क्या हुआ था, मेरा नेक्स्ट फॉलोअप कब होने वाला है, तो ये सारी चीजें मेरे फॉलोअप मैनेजर या फिर फॉलोअप समरी में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको इजीली ये चीज मैनेज अप कर सकते. आपका टाइमली फॉलोअप होता है कि मुझे अगर 10th मई को किसी को कॉल करना है, तो मेरी सिस्टम ऑटोमेटिकली मुझे बताएगी. आई नो नीड टू रिमेम्बर माई सेल्फ कि हाँ, मुझे 10 तारीख को किसको कॉल करना है. ओके, सो इसमें क्या है कि यू कैन ऐड योर मल्टीपल ब्रांचेस. सो अगर आपके पास अलग अलग सिटीज में अलग अलग ब्रांचेस है, एक सिटी में अलग अलग ब्रांचेस है, यू कैन ऐड ब्रांच वाइज लीड्स, गेट रिपोर्ट ब्रांच वाइज, एंड कौन से ब्रांच में कितने कन्वर्जन हुए, वो सारी चीजें हैं. ऑलराइट, सो असाइन लीड्स टू योर टीम मेंबर्स सो दे कैन टेक अ फॉलो अप एंड कन्वर्ट डील्स इजीली. आप टीम मेंबर्स को लीड्स असाइन कर सकते हो और वो उससे फॉलोअप लेके कन्वर्जन हो सकता है. मैनेज ऑल योर क्लाइंट्स. अभी इसमें क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि आपका 4 साल पुराना कस्टमर है, जिसने आपसे ऑलमोस्ट 20-25 टाइम्स आपके साथ बिजनेस किया है, तो उसकी सारी हिस्ट्री आप चेक कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर कस्टमर ने कब इंक्वायरी की थी, कब कन्वर्जन हुआ था, कितनी बार फॉलोअप किया था, किसने फॉलोअप किया था. ये सारी चीजें आपको वहां पे पता चलता है. एज वेल एज कितनी बार, अगर मैं 4 साल से हूँ, मैंने 1000 बार इंक्वायरी की है और उसमें से सिर्फ मैंने 20 बार ट्रांजेक्शन किया है, तो वो आपका CND टाइप का कस्टमर हो गया. तो आपको वो भी पता चलना चाहिए कि भले ही वो कस्टमर ने मुझे 4 साल में 20 बार बिजनेस दिया है, बट उसके लिए मैंने 1000 बार टाइम इन्वेस्ट किया है. राइट, तो यहाँ पे लीड वर्सेस कन्वर्जन आपको इजीली पता चलता है. जैसे मैंने बताया था कि नो लीड्स कम्स फ्री. अगर आप कोई भी लीड आपको लगता है कि ये मुझे इजीली मिल गई है, तो कहीं ना कहीं उसका आपको कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ है. तो वो कॉस्ट मैनेजमेंट या फिर कॉस्ट कैलकुलेशन जो है, वो ये सिस्टम में ऑटोमेटिकली होता है. Then business is numbers game. So the more exact numbers you have, the more business you are the business is growing, right? So जैसे ही मैंने बताया कि नंबर्स में जो जो भी अपने पोल्स थे, तो वो मैंने नंबर्स में लिए थे. क्यों? इंटेंशन यही था कि नंबर्स अगर आते हैं तो क्लियर हो जाता है. मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इस साल मेरा लॉस हुआ है बहुत, इस साल मेरा लॉस हुआ है 10%, या फिर मेरा
इंक्रीमेंट हुआ है, अगर आपके एम्प्लॉयज है, मेरा इंक्रीमेंट हुआ है 10%, 5% हाइक मिली है मुझे, ऐसे नहीं होता कि बहुत बड़ा मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो नंबर्स आर इम्पोर्टेंट इन दी बिजनेस, नंबर्स हटा है तो बिजनेस पॉसिबल नहीं है, राइट। सो यहाँ पे जो भी है हमारे एप्लीकेशन में, नंबर्स आर very critical. So what are the key points? We have 65 plus features to increase your sales, 14 plus industries happily using it, 12 models we have, sales automation, analysis and reporting part is there, and plus additional we are having around 30 plus features, those are into the pipeline, जो हम लोग उसके ऊपर अभी डेवलपमेंट का काम चालू है, जो वापस इसमें आपको हेल्पफुल रहेगा, राइट। तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको ये कहीं से भी आप यूज कर सकते हो, सिंस इट इज अ वेब एप्लीकेशन, आप कहीं से भी मैनेज कर सकते हो, आपके अलग अलग टीम अलग अलग एरिया से काम कर रही है, अलग अलग सिटीज से काम कर रही है, दे कैन इजीली, you can easily track their records. Okay, so I'll just quickly show the website of our just a second. Yes, so are you able to see my new screen? Anyone can just tell me so I can go ahead, since I have changed the screen. Okay, great. So this is our product, salessteps.in, and managing business leads was never been easier, right? So इसमें क्या होता है, you can manage prospects and customers, track lead follow-ups and teams, and it's a number game. So पहले हम लोग ये बोलते थे कि हम आपका बिजनेस 3x फास्टर कर देंगे, but the entire world is slowed down, but yes, you can manage your sales 100%. Okay, so what is sales steps? We reduce your lead leakage, we automate lead nurturing, timely follow-up, and more conversion. You can do more conversion out of this. All right, so these are the few numbers. uh, till now we have captured 624 leads. This data is before the lockdown, so we have not refined this data, but yes, uh, the total follow-ups taken was 1087, the leads converted 178, and the approximate business done is around 12 lakh 6,000 rupees. So this is the result of using sales steps. So one the testimonial kind of thing I can give you, that one of our business or one of our client is into the manpower supply. So उन्होंने क्या किया था कि जब भी हमसे उन्होंने सेल्स स्टेप्स लिया था अराउंड 2 years बैक, एंड उन्होंने उनके पास जो लीड्स थे पुराने वाले, तो उन्होंने वो सिर्फ डेटा एंट्री करना स्टार्ट कर दिया था उसमें. So after doing the all the data entries, they started doing follow-ups again. और वो follow-ups के बाद में उनको 2 महीने के बाद में जो एक उनकी डेड लीड थी, जो उन्होंने 1-1.5 साल पहले उनके पास इंक्वायरी की थी, बट वो कन्वर्ट नहीं हुई थी, बट उन्होंने उनको फॉलोअप किया था, उसके वजह से उन्होंने वापस कांटेक्ट जब किया तभी उनका लीड वापस वो जनरेट हो गई, एंड दे हैड कन्वर्टेड बिजनेस ऑफ रुपीज अराउंड 3.5 lakh, right? So this was the first achievement or feedback we got when we started our sales steps. So यहाँ पे miracles नहीं बोल सकते, but yes, the changes happened कि जो lead नहीं ना के बराबर थी, वो अभी convert होने के बाद में they gave the more happiness to them. Okay, now
कमिंग टू द फीचर पार्ट्स की फीचर्स क्या है वेबसाइट के सेल्स एप्लीकेशन के. ओके, सो जैसा आई मेंशन कि 12 मॉड्यूल्स है, 65 प्लस फीचर्स है, and which helps small and medium scale businesses. Okay, so the most important part is sales board. So we use Kanban system or Kanban methodology. अगर किसी को ये मालूम रहेगा तो we have implemented Kanban in our application which can be led to you lean management system. तो इससे आप आपका बिजनेस इजीली मैनेज कर सकते हो. इसमें अलग अलग पाइप्स होते हैं, आपकी लीड्स कहाँ से कौन से पाइप में है, यू कैन इजीली ट्रैक देम. लीड मैनेजमेंट, आप लीड क्वालिफाई कर सकते हो, सेंट्रलाइज लोकेशन पे आती है, सेल्स एग्जीक्यूटिव का असाइन होती है, तो आप आपके लीड के साथ में चेक कर सकते हो. द प्रोडक्ट एंड सर्विस मैनेजमेंट, कौन से प्रोडक्ट को कितनी लीड्स आई है, उसमें से कितने लीड्स कौन से स्टेज पे है, कौन से प्रोडक्ट को कितना लॉस हुआ है, और वो लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है. जस्ट आई हैव मेंशन कि अगर मेरी लीड लॉस होती है तो उसका फीडबैक भी लेना जरूरी है. तो यहाँ पे ये सिस्टम में ये फीचर है कि आप चेक कर सकते हो कि मेरे कितनी लीड्स थी, या फिर मेरे कौन से प्रोडक्ट को कितनी लीड्स थी और कितनी उसकी कन्वर्जन हुई है. सो यू कैन इजीली ट्रैक दैट. ओके, टीम मैनेजमेंट, आप आपके टीम को असाइन कर सकते हो, आप उनको टारगेट दे सकते हो, उसके अगेंस्ट आप ट्रैकिंग भी रख सकते हो. फॉलोअप मैनेजमेंट, कि आपको फॉलोअप लेना है कि आपके लीड्स कितनी है, कैसे कौन से फॉलोअप मोड पे है, कब फॉलोअप है, नेक्स्ट फॉलोअप क्या है. अगर मेरी कुछ पेंडिंग फॉलोअप्स है तो उसका अलग से ट्रैक होता है. इसमें ये है कि नेक्स्ट डे पे जितने भी आपको फॉलोअप्स करने हैं तो आपको प्रीवियस डे पे इवनिंग को ही मेल आ जाता है, जिससे आपको पता चलता है कि नेक्स्ट डे मुझे 10 फॉलोअप्स करने हैं. सो यू कैन प्लान योर डे अकॉर्डिंगली, राइट. सो एडवांस में आपको ये चीजें पता चलती है. कस्टमर मैनेजमेंट, जस्ट लाइक आई मेंशन कि कौन से कस्टमर ने कितने लीड्स दिए हैं, कितने बार कन्वर्जन किया है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो. The most important part is the lead nurturing part. So SMS automation is there. So मेरा जैसे ही कहीं से लीड आती है, we can take an example of इंडिया मार्ट. अगर मेरा इंडिया मार्ट है मेरे पास में पेड सब्सक्रिप्शन, तो मैं जाता हूँ इंडिया मार्ट के साइट पे, या फिर इंडिया मार्ट से जैसे मुझे लीड आती है तो मेरे सिस्टम से ऑटोमेटिकली मैसेज जाएगा, थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन आवर प्रोडक्ट, our sales executive will get back to you, meanwhile you can go through our website. तो वो क्या हो गया कि वो उसको रीडायरेक्ट करके लेके गया आपके वेबसाइट के ऊपर, जो आपकी वेबसाइट चेक करेगा, राइट. उसके बाद में नेक्स्ट डे वापस उसको मैसेज जाएगा कि होप यू हैव चेक्ड आवर वेबसाइट एंड जो भी आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लिए इंक्वायरी रहेगी, सो ये दीज आर द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट. तो वो एक मैसेज चला गया. आगे नेक्स्ट डे पे एक एसएमएस जाएगा. सो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है इसमें, राइट. सो एसएमएस क्यों? सो 78% एसएमएस आर गेटिंग ओपन एंड रीड. तो ये एक कन्वर्जन यहाँ पे ज्यादा है इसका. ओके, so the next part is CPL and CPA, cost per lead and cost per acquisition, the cost per conversion we can say. तो ये आप इजीली मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे. लीड कैप्चरिंग, सो द लीड कैप्चरिंग पार्ट इज, जैसे आप आपके वेबसाइट से कुछ लीड्स आती है, आपके इंडिया मार्ट से कुछ लीड्स आती है, ट्रेड इंडिया से कुछ लीड्स जो आती है, तो आपको मैन्युअली एंट्री करने की जरूरत नहीं है. आप जहां से भी ये लीड जनरेट होती है वो सिस्टम में ऑटोमेटिकली आ जाती है, और ऑटोमेटिकली आप उनको मैसेजिंग एंड नर्चरिंग करना स्टार्ट करते हो. सो दीज आर दी few features of the website application. Okay, so coming the next part is the industries, कि कौन से इंडस्ट्रीज को हम एप्लीकेशन हमारा वर्क होता है. So we have around 14 industries: finance and insurance, real estate, tourism and hospitality, education and coaching institutes, consultancy and professional services, marketing agencies, IT and software, medical, pharma and healthcare, vehicle dealers or high value product we can say. Those are those can be used or those can be our customers. Then service industry, event management companies,
manufacturing units, agriculture, recruitment agencies. So these are the industries where Cellceps is currently using. And yes, we are growing and enhancing new industries which we can provide services to them. Okay, so the next and important part, the pricing, right? So अगर हम प्राइसिंग के बारे में देखेंगे यहाँ पे, so we have 4 plans जहाँ पे पर्सनल है जिनके पास में एक या फिर दो सेल्स एग्जीक्यूटिव या फिर टीम है. The business plan, enterprise plan for 5 users and for 10 users. If you calculate the cost, 312 रुपए per month. This is discounted or introductory plan. 312 रुपए per user per month. In the business plan, 224 is the cost per user per month. And in the enterprise, 154 rupees per user per month. अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं पर डे के हिसाब से, so it will come 10 rupees 40 paise. The personal plan is 10 rupees 40 paise. For business plan, the cost is 7 rupees 46 paise per day per user. Okay, and enterprise plan में जो cost आती है, that is 5 rupees 13 paisa. Okay, तो ये costing अभी हमारी है. All right, which provide you the all the services जो मैंने आपको बताई है, जो भी फीचर्स है, तो वो सारे फीचर्स इसमें इन्वॉल्व है. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन. ओके, right, so how many of you think this application can help your business? How many of you think this application can help your business? Yes, great. Why this is helpful for you? Because we are, or this product is just a second, because these features are managing all your 5 pillars of your business. All right, so what we'll do, we have short of time, so the demo part, those who are interested, we can give you demo 1-to-1. All right, so moving ahead, the most important part, those who have seen our poster, key, you have chance here to win rupees 10,000 rupees. Who all are interested to earn 10,000 rupees? किसको किसको 10,000 रुपए चाहिए? Yes, one person is there. Sachin is there. Yes, definitely we'll give you demo will take another half an hour's time, so we'll take it 1-to-1, those who are interested. Yes, for currently we need participants who are interested to earn rupees 10,000 rupees right now. Okay, yes, thank you. So here is one what we can say, one offer for you. ओके, सो सिर्फ आपको क्या करना है, ये हमारा कस्टमर का डेटा है. ओके, जिसमें यहाँ पे ऊपर लिखा है कि कांटेक्ट पर्सन का नाम है, कांटेक्ट नंबर है एंड उसका ईमेल आईडी है. ये आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये ट्रैक करना है एंड हमको बताना है कि ये कस्टमर का नाम क्या है, उसका कांटेक्ट नंबर क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है. ये वी कैन कैलकुलेट अराउंड 20 रोज आर देयर. आपको
20 into 3, 30 फील्ड्स आर देयर। आपको कोई भी इसमें से एक रिकॉर्ड उठाना है और आपको सिर्फ उसका डिटेल्स मुझे बताना है कि ये कौन से कस्टमर का या फिर कौन सा कॉन्टैक्ट पर्सन है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और उसका ईमेल आईडी क्या है। अगर आप ये बता सकते हो, we can email or you can just send us the screenshot and claim 10,000 rupees. Is it fine? Chalega? Who all are in for this? Anyone? Okay, great. You can take a screenshot of this window and give us the data and claim 10,000 rupees by today till 9 o'clock, 9 p.m. Okay. Why we are giving this? This is our open challenge for which we have given in our website also. I'll just go back to my website. The reason behind this is, okay, so we are particular about our clients data. That's the reason we add two-layer data encryption, and we follow the policy that, okay, I guess this window is not visible. Is this visible? My browser is visible to everyone. Okay, yeah. So we have policy that your data is yours and not ours. So हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जब भी कोई भी कस्टमर का डेटा हमारे सिस्टम या फिर हमारे सर्वर पर स्टोर होता है तो उसको हम टू लेयर डेटा इंक्रिप्शन करते हैं. I can take guarantee of myself, but I cannot take guarantee of my any employee. क्योंकि employees are like, they are working with us right now. After 2-3 months or after 1 year, they can move to another company, they can move to competitors company, or they can move to any field, right? और आज के डेट में data has the more value than gold. Am I right? कि गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यू है डेटा की. अगर एक डेटा किसी के पास है, मेरा डेटा अगर किसी के पास है, तो मेरे सारी डिटेल्स उसके पास में जा सकती है. मेरा घर कहाँ पे है, मेरा मैं कहाँ पे काम करता हूँ, या फिर मेरा बिजनेस क्या है, and all these things we can easily track. So data is most valuable thing in today's world. So यहाँ पे हमारा चैलेंज ये है कि you can earn 10,000 rupees directly into your bank account अगर आप ये डेटा हमको क्रैक करके दिखाते हो, right? So this is that much of confidence we are having on our data encryption कि आप ये नहीं कर सकते. That's why we have kept 10,000 rupees directly price here. Okay, so अगर यहाँ पे आप ये चेक करते हो कि ये किसी बंदे का नाम है, उसका ये कॉन्टैक्ट नंबर है और ये इसका ईमेल आईडी है, ये तभी ओपन होगा, तभी ये डिक्रिप्ट होगा जब भी हमारा जो यूजर रहेगा उसने उसके यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन किया, तभी उसको ये विजिबल रहेगा. बाय चांस मेरा ये डेटा किसी ने एक्सपोर्ट कर लिया, लीक हो गया मेरा डेटा, और किसी ने ये ट्राई करने ओपन करने के लिए ट्राई किया, तो ये डेटा इस तरीके से दिखेगा. दूसरी चीज, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर किसी ने ये डेटा मेरे एप्लीकेशन से ही दूसरे का डेटा ओपन करने के लिए ट्राई किया, राइट? लेट्स सी कि ए कस्टमर है, उसने बी कस्टमर का डेटा एक्सेस करने के लिए ट्राई किया, बट ए कस्टमर की एनक्रिप्शन की इज डिफरेंट देन बी कस्टमर की. सो जब भी अगर बी कस्टमर ए का डेटा ए कस्टमर ट्राई करेगा ओपन करने के लिए, तो उसको वहां पे ब्लैंक डेटा दिखेगा, वो डिक्रिप्ट होगा ही नहीं. ओके, सो ये जो है आज के डेट में there are so many companies who can give you applications free of cost, but
they might use your data. So इसलिए उनको क्या है कि फ्री में दिया, आपका कस्टमर, आपके कस्टमर्स का डेटा उनके पास है, and they can easily sell that data and they can earn money out of it. But हमारे यहाँ पे पॉलिसी कि आपका डेटा जो है completely secured है. All right. So again, my question: how many of you are interested for this application? I'm not selling here. Just I have mentioned that I am not interested to sell this application right now, but I am just taking feedback. How many of you are interested for this application? Okay. Yes. Yes. Great. Great. Many of you are interested. So we have additional offer on this on top of the offers we have given. So जो 312 का प्लान है, पर्सनल प्लान या फिर जो बिजनेस प्लान है, जिसकी प्राइस थी 224 पर मंथ पर यूजर, एंटरप्राइज प्लान था 154 रुपीज पर यूजर पर मंथ. तो अगर इसके ऊपर मैं कुछ एडिशनल ऑफर देता हूँ आपको, ये ऑफर क्यों है? वी आर री लॉन्चिंग आवर सेल्सअप एप्लीकेशन. हमने बहुत सारे इसमें अपडेट्स अभी इंटीग्रेट किए हैं, एंड so for that we are relaunching our product on 15th of May. Okay, so 15 मई को हम ये वापस रिलॉन्च करें, तो इसके लिए हम ये इंट्रोडक्टरी ऑफर दे रहे हैं इसमें. सो द एक्चुअल प्राइसिंग ऑफ द पर्सनल प्लान इज 14,000 रुपए. 14,976 इज द एक्चुअल प्राइस. जो आफ्टर द ऑफर जो वेबसाइट पे है उसके ऑफर में जो है उसकी प्राइसिंग 7,488 आती है, राइट. जो बिजनेस प्लान है उसके एक्चुअल कॉस्ट है 25,000. वो जो है हमारे साइट पे उसकी प्राइस जाती है 13,440. एंड द एंटरप्राइज प्लान है जिसकी कॉस्ट एक्चुअली है 32,760 रुपीज. जो वेबसाइट पे हमारी कॉस्ट आती है 18,480 रुपीज. बट वी आर प्रोवाइडिंग दिस application at very lowest cost, that is 12,499 रुपीज. अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे डेली बेसिस पे कि 7 रुपीज 79 पैसा, 4 रुपीज 79 पैसा, 4 रुपीज 10 पैसा एंड 3 रुपीज 42 पैसा, ये इसकी कॉस्टिंग है ऑन ए डेली बेसिस. अगर ये आप देखते हो कि ये सिर्फ रहेगा आपके एक 5 रुपए के कैडबरी से भी ये सस्ता है. अगर आप 5 रुपए की कैडबरी भी कंसीडर करते हो तो ये 5 रुपए के कैडबरी से भी बहुत सस्ता है. बट वी आर कीपिंग दिस ऑफर फॉर जस्ट फर्स्ट 10 कस्टमर्स. जो भी 10 कस्टमर्स है जो भी प्लान लेते हैं, पर्सनल बिजनेस एंटरप्राइज जो भी है, बट कम्युलेटिव 10 कस्टमर्स को ही हम ये ऑफर प्रोवाइड करेंगे. इसके बाद में जो वेबसाइट के ऊपर जो ऑफर्स है वही हम प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके, सो दिस वाज द ऑफर. We are not selling here, we are just offering. If anyone wants, they can buy. We will not come to you that sir hamara product le lijiye, because we know that the price which we are giving here is not affordable to us. अगर हम सर्वर की भी कॉस्ट करती है तो सर्वर की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, राइट. Yes, Piyush ji will give you demo, right? So okay, all right, great. Okay, but here we see the offer value for first 10 customers. Okay, coming to the yesterday's offer again. So the first offer was 1,000 रुपीज, 1,000 SMS आपको मिलते हैं 300 रुपीज में, एंड 10,000 रुपीज 10,000 SMS आपको मिलेंगे 2,500 में. दिस इज अगेन, दिस इज नॉट आवर कोर बिजनेस. ऑफर 1 वाला हमारा कोर बिजनेस जो है वो सेल्स स्टेप्स है, ये हमारा कोर बिजनेस है. बट अगेन आई एम टेलिंग यू टू बी फ्रैंक upfrontly that we are not selling here, we are just giving you offer. Okay, so ये दूसरा ऑफर है जिसमें अगर आप कम्युनिकेट करते हो आपके कस्टमर के साथ में, आपके वेंडर के साथ में, एम्प्लॉयज के साथ में, प्रोस्पेक्ट के साथ में, so you can use this wonderful tool. Okay, so the second offer is 1-day workshop to learn and develop your own website.
Yesterday's offer was 999, आज की ऑफर है 1499। अगर आप कल इसको एनरोल करना चाहोगे तो वापस ये ऑफर चेंज हो जाएगा। ओके, सो कल जिन्होंने भी एनरोल किया है, सो दे हैव सेव देयर 500 रुपीज ऑन द स्पॉट। जिनको ये वर्कशॉप अटेंड करना है दे कैन एनरोल, बट यस ये भी किसके लिए है, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनसे लेके जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए कोई भी ये वर्कशॉप अटेंड कर सकता है। And trust me, this is very good session or very good workshop. Here you can learn lot many things and you will feel "अरे ये इतना easy है, website बनाना इतना easy है." We charge around 12 to 15,000 rupees for to develop website, but we are giving you the entire development process at just rupees 1499 rupees. So those who are interested for today, they can enroll today. Okay, so for any kind of queries you can contact us, or any kind of offer detailed offer चाहिए अगर आपको या फिर demo चाहिए, you can just contact us. We will schedule your demo, and as per the schedule we will give you the complete demonstration of our application. Okay, so we are at the last point about the tomorrow's session. So let me ask you first, how was the session, today's session? How you feel? आज का session कैसे लगा सबको? Was it good? Yes, Sachin, we will have one-to-one interaction and then we can give you demo. All right. Yes. Thank you. And tomorrow we will have one more session जो आज के सेशन से भी ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर आप उसको ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। वो है कंप्लीटली फ्री टूल्स है। आज के सेशन में मैंने आपको कुछ ऑफर दिया, कल के सेशन में मैंने कुछ आपको ऑफर दिया। कल का सेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आई जस्ट गिव यू वन डेमो कि आप कल क्या सीख सकते हो। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, ओके, आपको दिख रहा है ये वीडियो? All right, I play it again. ये वीडियो हमने लास्ट सेशन में बनाया था, लास्ट सीरीज जो हुई थी तभी। ओके, यू कैन सी दिस वीडियो जहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्नो प्रबोधन का लोगो है एंड म्यूजिक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये वीडियो अगर आप मार्केट में बनाने को जाओगे सो इट विल कॉस्ट यू 5,000 से लेके 10-12 हजार तक आपको ये मिल सकता है। बट ट्रस्ट मी, ये बहुत सिंपल है। अगर आपका बच्चा थर्ड स्टैंडर्ड में, फोर्थ स्टैंडर्ड में है तो भी ये वीडियो इजीली बना सकता है, ये इतना इजी है। सो हाउ मेनी ऑफ आर इंटरेस्टेड टू लर्न समथिंग लाइक दिस, कि ऐसा वीडियो आप खुद बना सकते हो आपके बिजनेस के लिए, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। ये वीडियो जो है अंदर का वीडियो है वो फ्री है, जो जो म्यूजिक चल रहा था वो एब्सोल्युटली फ्री है। इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, यस, सो सिमिलर काइंड ऑफ, ये तो एक अच्छा वाला प्रोडक्ट है जो फ्री में आपको मिलता है ऑनलाइन। आई जस्ट इंट्रोड्यूस यू, ये इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं है कि हमने क्या इसमें किया है या फिर दिस इज द मेन
मोटिव ऑफ टेक्नो प्रबोधन कि जहाँ पे हम बिजनेसेस को टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर करते हैं कि आप कौन से टूल्स यूज कर सकते हो और आपका बिजनेस इससे एनहांस हो सकता है. ओके. Yes, Sachin, that's why the tool, the entire thing I'll demonstrate you tomorrow in tomorrow's session. This is and there is nothing hidden in this session. We will give you the entire list of links कि कौन से वेबसाइट से या फिर कौन से पोर्टल से आप क्या क्या कर सकते हो. सारे लिंक्स हम आपको देंगे. सारे जो इनसाइट्स रहेंगे वो आपको हम दे सकते हैं. राइट. सो यू कैन इजीली go and check. Right. So again, coming back to the last slide. All right. All right. Yes. So again, this was the second session, and we will learn more 36 free tools which can be used for your business absolutely free of cost. So here I just would like to ask anybody having any doubt or any query or any feedback they want to give for today's session or yesterday's session, you can just tell me. I can unmute you so you can share by yourself. You can introduce by telling about your business also, so it can be like beneficial for you also. So 11 participants are here. uh, it can be used on Monday mobile. Can you just please repeat, Piyush ji?